20, the space you wish. Okay, I'm going to share my screen. So who will read the paragraph for me? Okay, one by one. ठीक है, फर्स्ट अवनी. Yes, ma'am. Latika was looking at the sky through her window. She said, "Look, mother, just one sun lightens the entire world during the day. When it sets, one full moon and 1,000 of stars all together can't provide the same amount of light." Her mother smiled. Latika kept on saying, "Look at the clouds and the birds that are flying so happily. I wish I were a bird flying right inside the clouds." "Don't worry, dear. You can still fly high. Just have a ride in an aeroplane and enjoy being in the clouds," said her mother. Latika's father found something interesting in the newspaper. "Wow," he said. "Now people can take a joyride up to the space." "Oh, really?" said her mother. "Let's book our seats on the spaceship." And both of them started laughing. Okay, okay. So there is one girl named Latika, and this is conversation between her mother and Latika, her mother and her father. So they were talking about the space. Space. Okay. They are talking about the suns and the moons. What Latika said, what Latika said to her mother, she said, one sun provide entire provide light to the entire world. It lightens the entire world during day, and in night, one moon and thousand of stars lights the world. So her mother smiled, and she said, and she kept on saying, she said, what Latika said, look at the clouds and the birds that are flying so happily. You also feel sometimes, मैं तो feel करती हूँ कि काश मैं एक bird होती so that I can fly high, especially when the season like आज का जैसा season है, rainy, cloudy, है ना? आप भी कभी ऐसा फील किए हो? काश मैं बर्ड होती, काश मैं क्लाउड्स में फ्लाई कर सकती, है ना? So same thing Latika was saying, I wish I were a bird flying right inside the clouds. So her mother said, don't worry, you can still fly. How? कैसे फ्लाई कर सकते हैं क्लाउड्स में? By just having a ride in an aeroplane. Okay. Her father said, now people can take a joyride in space. Space में भी हम ride कर सकते हैं. How? ये at present की बात है. पहले space में आप ride नहीं कर सकते थे, but at present अभी के time में you can take a joyride in space through spaceship. Okay. Oh really? Said her mother, and they both started laughing. क्यों हंसना start कर दिए दोनों? कोई बता सकता है? In next paragraph it is given. Okay. So Annie, read next paragraph. Latika was confused. What is there to laugh at? If people are going, you can also go, she said. Her mother said, look, dear, maybe you will get a chance to board a spaceship when you grow up. But for us, it is still a dream. Spacesuits are very costly. You need to have very good health and undergo very hard training to go to the space. Can you tell why Latika's mother said so? Think and discuss. So now can you tell why Latika mother said so? You need to have very good health and undergo very hard training to go to the space. Why? हाँ, Avni.
मैम बिकॉज स्पेस में जाना इजी नहीं होता है, वो बहुत रिस्की होता है। जिन लोग हेल्थ नहीं हो, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, वो लोग मर भी सकते हैं। और स्पेस पे ग्रेविटी भी नहीं होती है, ऑक्सीजन भी नहीं होता है। Yes, correct. Very good. Correct. In space, the environment like हमारे अर्थ पे जैसे environment है, स्पेस में वैसा environment नहीं है. Oxygen is not there. The atmosphere layer that protects us, that is also not there. The atmosphere layers that are present that protect us from harmful sun radiation. करेक्ट। तो ये सारी चीजें वहां पे स्पेस में नहीं होती है। ऑक्सीजन इज नॉट देयर, ग्रेविटी इज नॉट देयर लाइक इन अर्थ। अर्थ पे ग्रेविटी होती है, दैट्स व्हाई यू कैन वॉक, यू कैन स्लीप। बट इन स्पेस ग्रेविटी इज वेरी लो, वेरी लेस, होती ही नहीं है, नहीं के बराबर होती है। सो यू कांट वॉक देयर, यू कांट स्लीप देयर। यू आप अगर आपने कभी मूवीज में देखा होगा तो वो फ्लोट करते रहते हैं वहाँ पे, है ना, बिकॉज ग्रेविटी इज नॉट देयर। सो इस वजह से यू शुड हैव वेरी गुड हेल्थ एंड you have to go under a hard training if you wish to go to the space. Okay. Now, how many of you want to go to the space and want to be an astronaut? पहले तो मेरे को ये पता होना चाहिए। Anyone in the class want to be an astronaut? वृद्धि, अवनी, निष्ठा, आशी, सुहानी, तपस्या। Oh, means all the astronauts are in class 5, है ना? Boys में? No one in boy? Okay, now lower down your hand. कोई डाउट है अभी? एनीथिंग? मैम मेरे को एक डाउट है कि मैम वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं मैम, लेकिन के सबसे ज्यादा पास तो मर्क्यूरी है ना? हाँ, अर्थ के सबसे पास मर्क्यूरी है। नेक्स्ट प्लेनेट नेक्स्ट टू सन इज मर्क्यूरी, बट वीनस द डिस्टेंस, सी वो जो उनका ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट के एंगल से वीनस इज क्लोज, मतलब उनका जो डिस्टेंस है वो ज्यादा पास है अर्थ, सन और वीनस का। ओके, एंड द गैसेस, एंड बिकॉज ऑफ द गैसेस दैट आर प्रेजेंट देयर, उन सारी वजह से वीनस इज मोस्ट हॉटेस्ट देन मर्क्यूरी। यस मैम। हाँ, मैम मेरे को एस्ट्रोनॉट नहीं बन, स्पेस साइंटिस्ट बन। क्या बनना है? स्पेस साइंटिस्ट। स्पेस साइंटिस्ट। ओह, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड, गुड। So start reading books for यस मैम। मैम मैं बहुत सारी बुक पढ़ती हूँ और बहुत सारे लोग से भी बहुत क्वेश्चंस पूछती हूँ। पूछते हो? वाह, गुड, वेरी गुड। Yes, Shruti. Ma'am, can I read? Read the next paragraph. Yes, ma'am. The earth pulls or attracts everything towards itself. It is a difficult to move away from its pull. We have to spend energy to go against the earth's pull. We have to make an effort to jump up high. Birds have to use energy and flap their wings to fly high. The moment they stopping making an effort, they will fall down. This pull of force of attraction of the earth is called gravity. In fact, Okay, wait, Shruti. So the earth pulls all the things, it attracts everything towards it. It's because of force of attraction that is called gravity.
ओके अगर आपने कभी यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल टेक टू मैग्नेट्स ओके टेक टू मैग्नेट्स एंड एक मैग्नेट आप एक हाथ में रखो और दूसरा मैग्नेट दूसरे हाथ में थोड़े डिस्टेंस पे रखो तो अगर आप देखोगे तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर सो वाई बिकॉज इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ वो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ओके बट अर्थ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी सो एवरीथिंग अर्थ अपनी तरफ हम क्यों चल पा रहे हैं अर्थ पे हम कैसे खड़े हैं बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी सो इफ यू जंप या कुछ भी आप करते हो तो उसके लिए एनर्जी लगती है अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट रख रहे हो सपोज अर्थ के कोर की तरफ अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट्स अगर आप अर्थ के अपोजिट उल्टी तरफ कुछ भी करोगे तो यू विल नीड एनर्जी लाइक जंप करने के लिए आप जंप कर रहे हो अर्थ के अपोजिट साइड पे ऊपर की तरफ जा रहे हो सो यू नीड एनर्जी फॉर जंपिंग बर्ड्स आर फ्लाइंग फ्लाई करने के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए बिकॉज वो अर्थ के ग्रेविटी के ऊपर जा रहे हैं ओके सो दैट्स व्हाई दे नीड एनर्जी एवरीथिंग जो अगर आप ग्रेविटी के अपोजिट कुछ भी करोगे तो यू विल नीड एनर्जी ओके सो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of the earth is called gravity okay now next paragraph मीन्स आज अवनी के बहुत सारे डाउट्स रहेंगे हाँ अवनी मैम इस पैराग्राफ पे लिखा है कि बर्ड्स विंग्स फ्लैप करते हैं तो वो उड़ पाते हैं मैम लेकिन बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो लोग थोड़ी देर फ्लैप करते हैं फिर प्लेन कर देते हैं फिर भी वो लोग उड़ते ही रहते हैं हाँ मैम तो ऐसा कैसे होता है वो लोग फ्लैप किए कैसे उड़ सकते हैं वो कितने कितने ड्यूरेशन के लिए बिना फ्लैप किए उड़ सकते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स मैम हम लोग एक जगह गए थे तो वहाँ पे एक बर्ड मतलब पूरा ऐसे एक सर्कल घूम रही थी बिना फ्लैप किए तो फ्लैप किए बिना वो कैसे इतने देर तक उड़ सकते हैं मीन्स वो फ्लैप करके अपने अंदर एक एनर्जी ले लिए फॉर ट्रैवलिंग मीन्स वो फ्लैप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है दे आर फोर्स लगा रहे हैं और फिर आगे मूव कर रहे हैं लाइक फिश जब मूव करती है तो अपनी टेल पीछे फ्लैप करते रहती है और आगे की तरफ मूव करती है ना इन द सेम वे इन द सेम वे बर्ड्स दे फ्लैप वो पुश करते हैं लाइक आप भी कभी जंप कर रहे हो या कर रहे हो तो आप क्या करते हो पुश करके ऊपर की तरफ जाते हो तो एक एनर्जी जनरेट होती है उस वजह से आप ऊपर जा रहे हो इन द सेम वे वो भी विंग्स को ऐसे फ्लैप करके फिर आगे की तरफ मूव करते हैं इस वजह से वो थोड़ी देर तक एयर में विदाउट फ्लैप किए वो ट्रैवल कर सकते हैं यस मैम समझ में आया यस मैम सो आगे कंटिन्यू ये साक्षी मैम जो आपने मैग्नेट वाला बताया मैम मेरे पास मैग्नेट था मैम तो दोनों को चिपका रही थी तो एक को अपोजिट साइड दी थी तो वो दूसरे वाले से नहीं चिपकता था मैम दूर जाता था एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ पास खींच रहा होगा वो दूर क्यों जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैम कम क्लोजर अगर ऐसा हो रहा है दैट मैग्नेट इज नॉट उसका मैग्नेटिक पावर जो है वो कम हो गया है नो मैम मैम दोनों मैग्नेट को मैं चिपका रही हूँ तो चिपक रहा है फिर एक को अपोजिट साइड टर्न कर रही हूँ मैम तो चिपका ही नहीं है मैम वो दूर जाता है थोड़ा दूर नहीं जाता है बेटा वो अपनी तरफ दूसरे मैग्नेट को खींच रहा है दैट इज व्हाट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो दूर नहीं जा रहा है आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि वो दूर जा रहा है बट वो मूव कर रहा है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके मैम Riddhi, continue reading. In fact,
Yes, ma'am. Gravitational force is present in the entire universe. The formation of Galaxy. galaxies galaxies and the solar family movement of moons around the planets are due to the force of gravity. As we go higher away from the surface of the earth, the attraction of the earth or the gravity decreases in the space. This force of attraction is very less. Ma'am, I have a doubt. बोलो. मैम जो मैम जो आप मैग्नेटिक का बताएं मैम, मैम माय लिटिल सिस्टर हैव मैम वो लेके आई थी एक लूडो मैम मैग्नेटिक मैम, उसमें स्टार्टिंग से मैम मैं चुंबक को चिपका रही थी पर मैम वो मैम मैम वो दूर नहीं जा रहा था मैम, को चिपका रही थी तो वो चिपक नहीं रहा था. रिपेल करना होगा, रिपेल करना होगा. दूर जा रहे होंगे. यस मैम. नॉर्थ पोल एंड साउथ. मैम मतलब वो मैम मतलब वो मैम सपोज दिस इज चुंबक मैम मैग्नेटिक मैम, ऐसे मैम वो ऐसे चिपकाने के लिए कह रही मैम पर वो ऐसे यहीं पे रुक जाता है रुक जा. मैम फ्रॉम स्टार्टिंग. यस मैम. Try again after this class. Try again. ठीक है. And फिर in next class tell me. Okay, so the force of attraction is very less in space. ओके. स्पेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम रहता है बट रहता है. बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द फॉर्मेशन गैलेक्सीज फॉर्म हुए हैं सोलार सिस्टम में. द planets that are moving around in that orbit and the moon भी if you have learned full moon and no moon. तो जब फुल मून रहता है द वेव टाइड्स बहुत ज़्यादा हाई रहती हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज़्यादा रहता है उस टाइम पे. ओके. सो द ऑल द प्लैनेट्स एंड मून्स दैट मूव्स अराउंड इज बिकॉज वो अपने जगह पे रह के क्यों मूव कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वहाँ पे थोड़ी सी ग्रेविटी है, उस वजह से वो अपने ऑर्बिट पे रह के मूव कर पा रहे हैं. ओके. So as we go higher away from the earth, the force of gravity decreases. वो कम होते जाती है. The force of gravity is highest in earth. earth पे ज़्यादा रहती है. फिर बाकी अगर आप earth से दूर जाओगे तो it reduces. Now how do we get into the space? We need to go against the earth gravitational pull. अगर स्पेस में जाना है तो अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके हमें तभी हम स्पेस में जा पाएंगे. दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. आप सिर्फ जंप कर रहे हो अर्थ पे तो उसके लिए इतनी एनर्जी लग रही है. तो अगर आपको स्पेस में जाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी और स्पीड लगेगी. सो रॉकेट हैव बीन स्पेशली डिजाइन फॉर दिस पर्पस. ओके. रॉकेट्स आर डिजाइन फॉर गोइंग टू द स्पेस. And space shuttle, spacecraft, spaceship, all these are designed to go into the space against the gravitational force. Now how does a rocket works? I think ये सबने करके देखा होगा. Take a balloon, उसे fill the air in balloon और after filling the air just उसे छोड़ दो तो it will go. Take a balloon and fill it with air. Now leave it without tying its mouth. What will happen? आपने अगर ये I think सबने करके देखा होगा. अगर नहीं किया है तो do it. तो क्या होगा? It will move against. आप जिस भी डायरेक्शन में आप उसे छोड़ो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव करेगा. Okay. If you have lightened rockets in Diwali, आप रॉकेट नीचे वो किस तरफ जाता है? नीचे की तरफ तो नहीं जाता है. इट विल गो अपसाइड अगेंस्ट बिकॉज नीचे की तरफ वो आप लाइट कर रहे हो रॉकेट को. तो रॉकेट पूरे अपने फोर्स से अपने स्पीड और पूरे लाइट्स के साथ
एनर्जी के साथ ऊपर की तरफ जाता है, ओके, बिकॉज नीचे से आपने लाइट किया है. सो रॉकेट गोइंग टू स्पेस वर्क्स इन दिस सेम वे. Fuel at the base of the rocket burns and comes out at a high speed, pushing rockets upward into the space. Space shuttle, ये रॉकेट, इफ यू कैन सी इन द पिक्चर, अगर आपने परमाणु मूवी भी देखी होगी तो उसमें इट इज टोटली बेस्ड ऑन रॉकेट्स. ठीक है, स्पेस शटल जो जाता है उसके ऊपर बेस्ड है. सो नीचे से आप रॉकेट को लाइट करते हो तो उस वजह से उसे क्या मिलती है, एनर्जी. रॉकेट को एनर्जी मिल रही है. दैट एनर्जी एंड द स्पीड, उस वजह से रॉकेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ मूव कर पा रहा है. ओके, वंस इन स्पेस, आफ्टर गोइंग टू द स्पेस, रॉकेट से आप स्पेस में चले गए. वंस इन स्पेस द एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस. Our weight on the earth is due to gravity. ग्रेविटी में हम अपना वेट क्यों फील कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ अर्थ पे हम अपना वेट क्यों फील कर पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. वो ग्रेविटी हमें अपनी तरफ पुल कर रही है, उस वजह से हम अपना वेट फील कर पा रहे हैं. बट इन स्पेस देयर इज नो ग्रेविटी, सो यू विल फील वेटलेस देयर. दैट्स व्हाई यू, अगर आप यहाँ पिक्चर में भी देखो, दिस एस्ट्रोनॉट्स वो कैसे फ्लोट कर रहे हैं, एप्पल भी कैसे फ्लोट कर रहा है. सो अवर वेट in space we feel weightless. In space the gravity is very low and so is the weight. Astronauts keep floating in the space ship. Their food and even the water keep floating. So imagine कितना डिफिकल्ट होगा अगर सारी चीजें फ्लोट कर रही हैं. यहाँ पे तो सारी चीजें सेटल्ड है, बॉटल आपने रखा है, सामने कैमरा रखा है, तो वो अपने स्पेस में अपनी जगह पे है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. बट इन स्पेस सारी चीजें फ्लोट कर रही है. एप्पल मूव कर रहा है, आपको खाना है, एप्पल मूव करके सामने से चला गया. यस, आई विल टेक योर डाउट्स. हाँ बोलो तपस्या. मैम तो स्पेस में पानी भी फ्लोटिंग होता है? यस, एवरीथिंग. मैम तो जैसे एप्पल हवे में, तो मैम वैसे ही पानी भी हमें हवे में ही रहेगा? हाँ, पानी यू विल कीप इन सर्टेन कंटेनर ना, कोई कंटेनर में ही रखोगे पानी. यस मैम. सो दैट कंटेनर वो भी फ्लोट करता रहेगा. क्यों? बिकॉज देर इज नो ग्रेविटेशनल पुल. So astronauts have to take good meal and do plenty of exercise to stay fit in the space. इस वजह से वहाँ पे astronauts जो भी, अगर if you wish to be an astronaut, your health should be very good. You should go under a hard training. आप बहुत fit होने चाहिए, आपकी health बहुत अच्छी होनी चाहिए. In the space there is no up or down. Like here, दिस इज बॉटल. ये बॉटल का ऊपर का पोर्शन है, दिस इज बॉटम पोर्शन. बट इन स्पेस देयर इज नो सच अप एंड डाउन. एवरीथिंग कीप्स फ्लोटिंग. एस्ट्रोनॉट्स कैन अटैच देयर स्लीपिंग बैग्स एनीवेयर टू अ वॉल और अ सीलिंग. वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स कैसे सोते हैं? खड़े खड़े ही सो जाते हैं. They attach their sleeping bags to the ceiling and the wall. If you can see in the picture in page number, हाँ here, see कल्पना चावला, वो कैसी बैठी कैसी है? Because she has attached herself, खुद को अटैच किया है वॉल के साथ with a bag. ठीक है, एक बेल्ट से उन्होंने अपने आप को खुद को अटैच किया है वॉल में. सो इफ दे वांट टू, इफ दे विश, अगर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जो भी जा रहे हैं, अगर इफ यू विश टू सिट, बैठ के कुछ करना है या आपको सोना है, तो यू हैव टू अटैच योरसेल्फ विद अ वॉल और अ सीलिंग. ठीक है. फॉर स्पेस वॉक एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर स्पेशल टाइप ऑफ सूट. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज अ टाइप ऑफ सूट. एंड पीछे एक बहुत बड़ी सी सिलेंडर जिसमें कि ऑक्सीजन फिल्ड होता है, बिकॉज
We need oxygen to stay alive, और स्पेस में there is no air, ऑक्सीजन नहीं रहता है वहाँ पे. So we have to contain us, we have to take, we have to wear that special suit. There is no air around and it is very cold outside. वहाँ पे बहुत ठंड रहती है. Astronauts wear this special space suit to help them breathe, stay warm and protect themselves from harmful radiation. When we are in Earth, हम Earth पे हैं तो atmospheric layer, ozone layer and many types of layer, they are protecting us from harmful radiation. But space में वहाँ पे तो ऐसी कोई लेयर नहीं है. So हार्मफुल रेडिएशन से बचने के लिए, बाहर की ठंड से बचने के लिए और ऑक्सीजन ब्रीथ इन करने के लिए देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सूट, स्पेस सूट, okay, that helps astronauts to stay alive there. Now there are certain space agencies like ISRO, Indian Space Research Organization, that takes care of space research program in India. India में जितने भी space programs होते हैं वो कौन देखता है? ISRO, Indian Space Research Organization. इसे underline कर लो. I will ask the full form of ISRO. NASA, National Aeronautic and Space Administration, is the agency of the United States of America that takes care of the space research program. United States America में the organization that takes care of all the space programs, जितने भी रिसर्च होते हैं वो कौन हैंडल करता है? नासा. ओके. मिशन मंगल आपने देखा होगा. If you have watched the movie Mission Mangal, it is based on the rocket. कैसे जाता है मंगल पे? Now let's talk about the first that go to the space. सबसे पहले स्पेस पे कौन गया था? On 12th April 1961, Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. Soviet cosmonaut Yuri Gagarin. Yuri Gagarin is the first person on 12th April 1961. फर्स्ट मैन टू ट्रेवल टू द स्पेस. ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए. ओके. इन जीके बेस्ड क्वेश्चन, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सारी जगह ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो फर्स्ट मैन टू ट्रेवल टू द स्पेस इज यूरी गैगरिन. नाउ रशियन कॉस्मोनॉट Valentina Tereshkova was the first woman. First woman कौन है? First man is Yuri Gagarin. First woman is Valentina Tereshkova. Went to space in 1963. Okay. Now what is cosmonauts? Cosmonauts are the name given to the astronauts in Russia. Russia में astronauts को क्या बोलते हैं? Cosmonauts. Cosmonauts are the same as astronauts. Russian use this term cosmonaut. And in America they use astronaut. अमेरिका में एस्ट्रोनॉट ही कहा जाता है. Okay. On 20th July 1969, Neil Armstrong and Edwin Aldrin became the first man to walk on the surface of the moon. On 20th July 1969, date याद होनी चाहिए आपको. First, Neil Armstrong and Edwin Aldrin become the first man to walk on the surface of the moon. Moon पे चलने वाले पहले person कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग and Edwin Aldrin. They are the American astronaut. Now this is about the first man and woman that travels to the space. Now India से सबसे पहले कौन गया था? Anyone will read? Ashi? मैम मेरे को एक बात पूछना है. चलिए read your doubt.
मैम इसमें 2 टाइप के स्पेस सूट्स हैं मैम, 2 कलर के, ऑरेंज एंड वाइट। मैम वाई? 2 कलर के यस मैम, क्या 2 बेटा? कलर्स ऑफ स्पेस सूट। 2 कलर के क्यों होते हैं? नो मैम। हाँ, देन व्हाट इज? मैम स्पेस सूट, हाँ, मैम स्पेस सूट कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप के होते हैं? यस मैम। एक ही टाइप के होते हैं बेटा, इसमें कोई टाइप नहीं है. It depends on the country, from which country astronauts are going. See, here Neil Armstrong, they are from America. That's why उनका वो white color का सूट है, उनके सूट के ऊपर उनका फ्लैग भी है. And these two are from Russia. So every country have their यस मैम। डिफरेंट टाइप ऑफ सूट जो है वो बेसिकली उसमें एक तो वो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, प्लस उनका सूट जो है रेडिएशन से बचने के लिए होगा. सूट जो है वो बेसिकली जो बेसिक डिजाइन होता है वो सेम ही होता है, बट कलर्स जो है वो इट डिपेंड्स, इट वेरी, तो कोई भी कलर का हो सकता है. Okay, Avni, read the paragraph, next one. Yes, ma'am. In 1984, Rakesh Sharma became India's first citizen to go into space as a cosmonaut. He spent 8 days in the Soviet Salyut's 7th space station along with 2 Soviet cosmonauts. During this period, he studied the effect of yoga on the body in space. When Rakesh Sharma was in space, Miss Indira Gandhi, Prime Minister of India, asked him how India looked from the space. He said, Sare jahan se acha. All Indians saw this conversation on their television. Okay, wait. For this, So the first citizen of India कौन गया था स्पेस में सबसे पहले? राकेश शर्मा. From India सबसे पहले कौन गया था? राकेश शर्मा. So when Rakesh Sharma went to the space, at that time Prime Minister, who was the Prime Minister? Mrs. Indira Gandhi. Indira Gandhi was the Prime Minister at that time. She asked Rakesh शर्मा कि हमारा इंडिया कैसे दिखता है, वहां से इंडिया कैसा दिखता है. तो ही सेड सारे जहां से अच्छा, मीन्स इंडिया जो है वो सबसे अच्छा दिख रहा था स्पेस से. एंड ऑल इंडियन सॉ दिस कन्वर्सेशन ऑन द टेलीविजन एट दैट टाइम. जैसे अभी के टाइम में डिजिटल टेलीविजन वगैरह है वैसे नहीं थे. सो ऑल इंडियंस सॉ द कन्वर्सेशन बिटवीन राकेश शर्मा एंड मिसेस इंदिरा गांधी ऑन television. And before going to space, Rakesh Sharma spent 8 days in the Soviet Soyuz and 7 space station along with और 2 cosmonauts के साथ. He spent 8 days in the Soviet Soyuz. वहाँ पे उसने राकेश शर्मा studied the effect of yoga. योगा का क्या effect होता है body पे in space he studied. Okay. excuse me, ma'am. हाँ. मैम स्पेस से इंडिया कैसे दिख गया मैम? मतलब वो तो अर्थ के बाहर थे, तो इंडिया कैसे दिखा उनको? इंडिया कैसे दिखा? बाहर कैमरा लगे हुए होते हैं बेटा, और उन्होंने पिक्चर, आपने वॉच परमाणु मूवी या तो फिर उरी, अगर उरी भी देखी होगी तो ऊपर से यस मैम. स्पेस से सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, तो सैटेलाइट से आप सैटेलाइट टेक द पिक्चर. ओके, उनके अंदर कैमरा फीडेड होते हैं, तो दे टेक द पिक्चर. अभी तो बहुत टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है. एट दैट टाइम वहाँ पे स्पेस से क्यों नहीं दिखेगा अर्थ? सारे प्लैनेट्स, बाहर के सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, तो अर्थ इज ऑल्सो विजिबल. सो वहाँ से अर्थ में से अर्थ नो मैम, अर्थ
अर्थ तो विजिबल है मैम, बट अर्थ अर्थ तो एक बॉल होता है और उसपे बहुत सारे कुछ कुछ बने भी होते हैं, तो उसपे वो इंडिया कैसे दिखेगा उसको? इंडिया जो है, बिकॉज उस टाइम ये राकेश शर्मा एंड मिसेस इंदिरा गांधी के बीच की जो कन्वर्सेशन थी उसमें ये भी था कि सारे जहां से अच्छा, ये तो उन्होंने कहा, बट सबसे ज्यादा लाइट जो है और बहुत ज्यादा जो चमक रहा था वो इंडिया ही था। बिकॉज आई थिंक, आई एम नॉट 100% श्योर, बट उस टाइम में शायद दिवाली थी, तो उस टाइम पे हमारा इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा चमक रहा था। आई हैव ऑल्सो हर्ड, मैंने ये सिर्फ सुना है, दैट्स वाई आई एम सेइंग, आई एम नॉट 100% श्योर, ये मैं आपको पता करके बताऊंगी। बट उस टाइम पे शायद दिवाली थी जिस टाइम पे राकेश शर्मा गए थे, तो इंडिया जो है वो अलग से हाईलाइट होके चमक के दिख रहा था, ऐसा आई हैव हर्ड। यस मैम। आई विल, मैं आपको, मैम हाँ मैम मेरी मम्मा मेरे को बता रही कि अपन जैसे अर्थ एक बॉल है, उसके ऊपर अपन रहते हैं। मैं तो, मेरे को अभी तक वो समझ ही नहीं आया कि ऊपर कैसे रहते हैं। मम्मा बोली कि अभी तू छोटी है, समझ ही नहीं आया। Okay, for that we need structure of earth. A structure of earth मैंने चैप्टर नंबर 15 में बताया था। सेंटर में कोर होता है, फिर उसके बाद मेंटल होती है और क्रस्ट होता है, इफ यू रिमेम्बर। सो वी यस मैम। लिव ऑन द यस मैम। क्रस्ट, हम क्रस्ट के ऊपर रहते हैं और अंदर की तरफ मेंटल और कोर है। ओके, ये स्ट्रक्चर ही है अर्थ का, और हम अर्थ के क्रस्ट वाले लेयर के ऊपर रहते हैं, सबसे टॉप मोस्ट लेयर पे रहते हैं, और अंदर जो है वो कोर है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। अंदर कोर इज सो हॉट यू कांट सर्वाइव देयर। वहां पे देयर इज वन मोर मूवी, हॉलीवुड मूवी, द कोर। अगर आपको, यू शुड वॉच, बिकॉज अगर आपको ये सारी चीजें पसंद है तो द कोर करके एक मूवी है, you should watch it. It's very helpful to know about the structure of earth, और कोर के बारे में अगर जानना है तो। कोर बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। सो वी कांट लिव देयर, हम वहाँ रह नहीं पाएंगे। यस मैम। सो रिमेनिंग चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज आपका क्लास का टाइम ओवर हो गया है। ओके, so we will continue in next class. हाँ, डाउट, यस, डाउट। हाँ निष्ठा बोलो। मैम जैसे अगर मैम इसमें अगर आप मैम प्लेट में खाना कैसे रखोगे मैम, तो वो हवा में उड़ेगा सबसे बड़ी प्लेट? सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, आप वहाँ प्लेट ऐसे रख ही नहीं पाओगे, प्लेट खुद भी हवा में उड़ती रहेगी, बिकॉज वहाँ ग्रेविटी ही नहीं है, तो आप वहाँ कुछ भी चीज़ें ऐसे सेटल करके नहीं रख सकते। आप अगर पिक्चर में देखोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें बंधी हुई रहती है, सब बांध के रखना पड़ता है वहाँ पे। मैम मैम स्पेस में पानी ना होता है मैम, मैम जो स्पेस में और मैम मैम जैसे मैम जब एस्ट्रोनॉट्स गए होंगे वहां पे मैम, तो उस समय